Good afternoon, dear students. As we Good have afternoon. Good afternoon, sir. Good okay, afternoon, sir. as we have discussed in our last session about Unit 2, and this one is the second session of Unit 2, that is about HTML introduction. We have studied about HTML introduction in previous classes, and now today we will see about the tagline used in HTML. So let's start. The first and the first tag in HTML, that is document type. What is the meaning of this tag? The document HTML declaration defines that this document is an HTML5 document. Okay. This tag is saying this is आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. okay. Thank you for informing me. Is that visible now? Yes, sir. Okay. ठीक है. तो W3 स्कूल पे हम देखते हैं यहाँ पर HTML इंट्रोडक्शन है हमारा. HTML इंट्रोडक्शन में आप देखते हैं सबसे पहला टैग जो हम यूज कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट HTML. This one is the very first tag in our HTML document which declares and defines that this is document in HTML5 document. जो हमारा इसके नीचे जो भी कोड लिखेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आएगा, वो ब्राउज़र को एक मैसेज सेंड करता है कि इसमें जो भी कोडिंग होंगी वो HTML5 की कोडिंग है, एंड अकॉर्डिंगली ब्राउज़र क्या करता है, इसके डिक्रिप्ट करता है. सो द नेक्स्ट टैग इज HTML tag. HTML element is the root element of an HTML page. This is the root element. And now after this tag we will move for the head tag. This is head tag. Head element contains meta information about the HTML pages. It has several information about your HTML pages. Now the title element specifies the title for the HTML page which is shown in the browser's title bar in the page tabs. So the title will be displayed on the title bar of the page tab. And now about the body tag. The body tag element defines the document's body and is a container for all the visible content such as heading, paragraph, image, hyperlink, tables, list, etc. All the content will inside the body tag which is going to reflect on our web browser. Now the h1, this is h1 element defines a large heading, and similarly there are 6 type of heading tag, h1 to h6. H1 stands for large heading and H6 for the smallest heading. Now the next tag is P, that is stands for paragraph. That element defines a paragraph. The P element, this tag defines a paragraph. Is that okay? तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा डॉक्यूमेंट HTML टैग, HTML टैग, हेड, टाइटल, बॉडी, फिर हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है. इन सभी टैग को हमने देखा और इसका वन बाय वन यूज करते हैं. मैंने W3 स्कूल को प्रीफर किया है, इस वेबसाइट को प्रीफर किया है. इसका मेन मोटिव ये है बिकॉज दिस वेबसाइट हैज इट्स ऑन एडिटर, ऑनलाइन एडिटर, by the help of which we can also use this editor on our mobile phone. because अभी मोस्ट ऑफ द हम लोगों की क्लासेस तो ऑफ ही है, स्कूल ऑफ है, तो हम लोग और हमारे सभी के पास पीसी है नहीं, तो मोबाइल पे बच्चे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इस एडिटर का यूज़ कर लिया, इस वेबसाइट का यूज़ कर लिया. बाय द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट वी मे यूज़ द एडिटर ऑन आवर मोबाइल फ़ोन. ओके, सो अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके आगे. इज दैट क्लियर? अभी तक में सब ओके है? यस सर. कुछ पूछना है आप लोगों को? ऐसा No, कोई? sir. ओके, सो आगे मूव करते हैं फिर. व्हाट इज एन HTML एलिमेंट? HTML एलिमेंट क्या क्या है? HTML एलिमेंट क्या होता है? एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग. यहाँ पे
HTML एलिमेंट में क्या होता है, एक स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। हियर यू मे सी दैट दिस इज योर स्टार्ट टैग कंटेंट्स गोज हियर, इसके बीच में जो भी कंटेंट होंगे ये यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आपका क्लोजिंग टैग हो जाएगा। एंड दिस इज आल्सो नोन एज कंटेनर टैग, इसको और कंटेनर टैग भी बोलते हैं बिकॉज इट contains the content, it has many contents. ओके, सो दिस इज कंटेनर टैग और हमेशा ये एक पेयर में होते हैं, एक ओपनिंग होता है दूसरा क्लोजिंग होता है, राइट। सो नाउ द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा हमारा ना, तो वो स्टार्ट टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारा कंटेंट होगा। तो यहाँ पे टैग जो भी टैग यूज करेंगे लाइक SP, H1 या फिर हेड या फिर टाइटल जो भी है, तो ये क्लोजिंग टैग के बीच में हमारा कंटेंट रहेगा, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में हमारा कंटेंट रहेगा। You may see here H1, this is H1 closing tag and this is H1 opening tag and this is H1 closing tag. This is paragraph opening tag and this is paragraph closing tag. Okay. So now you may see here this is a first heading H1, my first paragraph that is P and BR. This is non-container tag. ये container tag नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको opening और हमें ये पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ BR आप लिख दोगे दैट्स एनफ, देयर इज नो नीड टू क्लोज द BR टैग, ठीक है। ये स्पेशल टैग्स हैं, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं some HTML element have no content like the BR element. These elements are called empty element. Okay, empty element है, empty element don't have any end tag. ये empty tag है, ये कुछ contain नहीं करता है, ये स्पेशल फीचर के लिए यूज किया जाता है। ओके, होल्ड अ सेकेंड। सो इसके बारे में देखते हैं। ओके, मैं अभी आपको समझ में आ गया कंटेनर टैग और नॉन कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग, समझ में आ गया ये दोनों? Yes. ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे पिछले सेशन में बताया था, देयर इज नीड ऑफ टू एप्लीकेशन। फर्स्ट वन इज योर टेक्स्ट एडिटर, सेकेंड वन इज योर वेब ब्राउजर। टेक्स्ट एडिटर पे क्या करेंगे, हम अपने HTML कोड को लिखेंगे या CSS कोड को वहाँ पे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, ब्राउजर पे इसका डिस्प्ले देखेंगे या इसका जो भी आउटपुट होगा वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। सो नाउ हियर इज द पॉइंट, वेब ब्राउजर। द पर्पस ऑफ ए वेब ब्राउजर Chrome, Edge, Firefox, Safari is to read HTML document and display them correctly. Okay, a browser does not display the HTML tags but uses them to determine how to display the document. यहाँ पर आपके HTML टैग्स डिस्प्ले नहीं होते हैं, जो भी हमने HTML टैग यूज किए वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होते, बट हम लोगों के HTML टैग के बीच में जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा स्पेसिफिक आउटपुट हम देखना चाहते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। लाइक एज अगर हम यहाँ पर H1 हेडिंग 1 डाल दें, हेडिंग 1 डाल के फिर ये हेडिंग 1 का क्लोजिंग है और बीच में हमने ये माई फर्स्ट हेडिंग रखा हुआ है, तो हमारे ब्राउजर पे क्या डिस्प्ले होगा, ब्राउजर पे क्या डिस्प्ले होगा हमारे? Are you getting my voice? Hello? Are you getting me? Yes, sir. Okay, so tell me the output. If we are going to put the line between the tag H1, okay, my first heading, this is H1 opening tag, this is H1 closing tag, तो हमारा ब्राउजर पे आउटपुट क्या दिखाएगा? ब्राउजर पे आउटपुट क्या आएगा? मेरी बात समझ में आई कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ आपको? No, sir.
एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे ये कोडिंग लिख दें, ठीक है, तो हमारे ब्राउजर पे जो डिस्प्ले होगा वो क्या डिस्प्ले होता है? H1 डिस्प्ले होता है क्या? ये टैग डिस्प्ले होता है क्या? ये वाला टैग डिस्प्ले होगा? यस सर। ये टैग डिस्प्ले होगा? नो सर। तो वहां पे क्या डिस्प्ले होगा? सिर्फ और सिर्फ ये डिस्प्ले होगा। क्या मेरी स्क्रीन तो नजर आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। तो यहाँ पर आपको ना माई फर्स्ट हेडिंग डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये टैग डिस्प्ले नहीं होता है, ये टैग हमारे ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पर ये पी डिस्प्ले होगा क्या? ये पी डिस्प्ले होगा? नहीं। इसी तरह यहाँ पे बी आर भी डिस्प्ले नहीं होता है। ये जितने भी टैग हैं वो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होते हैं। डिस्प्ले क्या होता है? एलिमेंट कंटेंट, जो भी हमारा मेन कंटेंट रहता है वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या है? माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये H1 टैग के अंदर है, ये P टैग के अंदर है। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ आपका? माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे और कुछ भी आपका डिस्प्ले नहीं हुआ। जो भी टैग्स हैं वो इसका आउटपुट दिखा रहा है ना, इसी का आउटपुट है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे ये सभी टैग आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। इज दैट ओके? ठीक है। यस सर। सो HTML पेज जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? HTML पेज का स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले HTML आएगा, आफ्टर देन हेड के नीचे टाइटल, ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप लोग इंग्लिश ग्रामर में, आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स है ना, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है ना। तो इसमें भी ऐसे ही एक सिंटैक्स है कि यहाँ पर पहले HTML आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टाइटल आएगा। इसके अंदर आप पेज टाइटल लिखोगे, फिर हेड का क्लोजिंग, फिर यहाँ पे बॉडी स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुई, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, एंड देन ये बॉडी के मेन कंटेंट हमारा हमेशा बॉडी के अंदर रहता है, इसको ध्यान में रखना आप। हमारा मेन कंटेंट जो होगा वो बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ बॉडी के अंदर हमारा कंटेंट आ गया, ओके। नाउ फिर HTML कोड हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है? ओनली द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन, द व्हाइट एरिया अबव विल बी डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर। यहाँ पर इतने सारे कोडिंग लिखी हुई है और हमारा डिस्प्ले क्या होगा? ये जो सिर्फ बॉडी के अंदर जो भी हमारी लाइंस हैं उसमें टैग को हटा के, ये जो टैग हैं ये टैग डिस्प्ले नहीं होता है, तो बाकी सभी चीज डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर आउटपुट क्या दिखाएगा आपको? ब्राउजर पे आउटपुट क्या दिखाएगा? कोई बताएंगे? ब्राउजर पे आउटपुट क्या आएगा हमारा? फर्स्ट लाइन में आएगा दिस इज हेडिंग, सेकेंड लाइन आएगा दिस इज ए पैराग्राफ, एंड सेकेंड उसके उसके नेक्स्ट लाइन आएगा दिस इज अनदर पैराग्राफ, ठीक है। इज दैट क्लियर ना? यस सर। ठीक है। सो नाउ ये HTML का इंट्रोडक्शन था। तो एक बार अगर इस प्रोग्राम को रन कराने जाएंगे तो हम ये सभी कोड यहाँ पर लिखेंगे, एंड देन वहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो जाएगा ये 3 लाइन, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द HTML एडिटर्स। यहाँ तक में आप लोगों को कुछ पूछना है? कोई प्रॉब्लम है? आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? मेरी आवाज तो प्रॉपरली आ रही है ना? यस सर। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज HTML एडिटर्स। HTML एडिटर क्या करता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज ऑल यू नीड टू लर्न HTML। यहाँ पे आपको एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होगी, वहाँ पे आप HTML यूज कर सकते हैं, HTML की कोडिंग को लिख सकते हैं। वहाँ पे आप जो भी कंटेंट लिखना चाहें वो सिंपल टेक्स्ट एडिटर लिख सकते हैं। So learn HTML using Notepad or text editor. The default text editor in our computer system having the Microsoft operating system. तो यहाँ पर डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर क्या होता है हमारा? नोटपैड, ओके। ये हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर होता है, और बाकी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। सो नाउ वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML editors.
Web pages can be created and modified. So here web pages can be created and modified by using professional HTML editor. HTML की जो भी कोडिंग होती है ना, वहाँ पे आप एडिट का ब्राउजर पे एडिट नहीं कर सकते हम। जो भी HTML की कोडिंग होती है उसको एडिट करने के लिए क्या जरूरत होती है हमें? टेक्स्ट एडिटर की, ठीक है। और ब्राउजर पे सिर्फ हम सिर्फ उसका आउटपुट देखते हैं। नाउ हियर इज द पॉइंट, हाउएवर फॉर लर्निंग HTML वी रिकमेंड ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे आपको बोल रहा है बिल्कुल सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर यूज कीजिए अगर आपको HTML सीखना है तो, लाइक नोटपैड और टेक्स्ट एडिट मैक। वी बिलीव इन दैट यूजिंग ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज ए गुड वे टू लर्न HTML। HTML सीखने के लिए आपको एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर लेना चाहिए। फॉलो द स्टेप्स बिलो टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिट सॉरी। तो यहाँ क्या कर रहा है, विंडो 8 और लेटर स्टेप बाय स्टेप आपको टेक्स्ट एडिटर को स्टार्ट करने के लिए बताया जा रहा है। सो ओपन नोटपैड, सबसे पहले नोटपैड स्टार्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका नोटपैड होगा या टेक्स्ट एडिटर जो भी होगा, नोटपैड ओके। सो यहाँ पे नोटपैड आपका एडिटर है, दिस इज टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड प्लस प्लस भी है, दिस इज आल्सो ए टेक्स्ट एडिटर। दोनों में डिफरेंस है। नोटपैड प्लस प्लस आपका थोड़ा ये आपको ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। नोटपैड बिल्कुल सिंपल का है और नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड से थोड़ा एडवांस वर्जन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइक एज, यहाँ पर अगर नोटपैड प्लस प्लस आपको दिखाऊं, सो यू मे से हियर नोटपैड प्लस प्लस का क्या है, यहाँ जैसे ही आपने नोटपैड प्लस प्लस स्टार्ट किया ना, तो अब देखिए अगर आपको कोडिंग करनी है, कैलकुलेट, जैसे हमने लास्ट कोडिंग की थी, एक कैलकुलेटर यहाँ पे हमने बनाया था क्लास 12 के बच्चों के साथ। तो यहाँ पे वो हमारा लास्ट सेशन यहाँ पे सेव है। सो यहाँ पे देखिए HTML हेड ये सभी यहाँ पर यूज़र फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाती है। जैसे देखिए फाइल यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू फाइल स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइल जैसे ही हमने स्टार्ट किया, देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ लिखेंगे ना HTML, ठीक है, और ये हमें गाइड करते जाता है धीरे। और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो लिखने की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी टैग लिखाएंगे कपल में ये पेयर में होंगे ना, तो जैसे ही ओपनिंग टैग होता है क्लोजिंग टैग भी होगा ना, इसका क्लोजिंग टैग भी हुआ ना। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस के लिए इसको जहाँ HTML स्टार्ट किया वहां पर ही HTML के कोड को, देखो यूजर फ्रेंडली इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो ये नीचे आ गया ना आपका। अब आप इसको नीचे वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओके। तो ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया। इससे क्या होता है कि आप कभी भी कोड करना मतलब किसी पॉइंट को मिस नहीं करोगे, ठीक है। एंड देन हेड का टैग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हेड हमने स्टार्ट किया एंड देन इसके साथ ही क्या करेंगे, इसको क्लोज भी कर लेंगे। नहीं, देखिए यहाँ पे हेड टैग आपको यूज आ गया, ठीक है। तो हेड की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे नीचे आइए, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज टाइटल ना, टाइटल होगा ना। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल को भी क्लोज करेंगे ना। यस सर, टाइटल के क्लोजिंग टैग से। क्लोजिंग टैग से टाइटल को क्लोज कर दिया। अब फिर क्या आएगी हमारी दूसरी टैग, टाइटल के बाद क्या आएगी, दिस इज बॉडी टैग होगा हमारा, बॉडी टैग है। बॉडी टाइटल में मान लो कि टाइटल में हमने क्या लिखना था, माई फर्स्ट वेब पेज, ओके। ये हमारा टाइटल हो गया। एंड टाइटल को आप अगर थोड़ा सा ये करना चाहो तो सेम ही लाइन में लिख सकते हो क्योंकि एक ही लाइन की टाइटल है, इससे ज़्यादा लाइन तो जाएगी नहीं, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर बॉडी स्टार्ट किया, फिर बॉडी को क्लोज भी करना है हमें, बॉडी को हमने क्लोज कर दिया, सॉरी, ठीक है। अब मेन कंटेंट जो हमारा आएगा वो कहाँ आएगा, बॉडी के नीचे आएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं। नहीं, हेडिंग ले लिया। H1 टैग तो किस लिए यूज किया जाता है, लार्ज फॉन्ट के लिए या स्मॉल फॉन्ट के लिए, सर लार्ज। लार्ज के लिए, ठीक है।
तो H1 के अंदर लिखते हैं दिस इज, क्या लिखें यहाँ पे, कुछ भी बताओ। दिस इज टेस्ट पेज। ओके, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब फिर H1 को भी क्लोज करना पड़ेगा क्या? H1 को क्लोज करने की जरूरत है? H1 को क्लोज करना है या नहीं करना? सर करना है। करना है, ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। सो इस पॉइंट, इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे फिर? मान लो एक नहीं, ऐसा करते हैं, दिस इज लिख देते हैं, दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। इसी तरह आप क्या करते हैं, दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं H2, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हेडिंग आपको दिखाई देगा कि हेडिंग का लार्ज साइज फॉन्ट कौन सा है और स्मॉल फॉन्ट कौन सा है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। और कितने हेडिंग है हमारे पास? हेडिंग के हेडिंग कितनी कैटेगरी के होते हैं? H1 से कहाँ तक करते हैं हेडिंग हम? H6। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया है मैंने। यहाँ पे H1 1 2 3 4 5 6 और 7 भी ले लेते हैं। 7 में देखते हैं क्या होता है, क्यों। तो सो यहाँ पे अगर H1 यहाँ पे H2 लिखा है तो क्लोज कौन होगा? H2 ही क्लोज होगा ना, ठीक है। यस सर, H2 लिखा है तो H2 क्लोज होगा, H3 लिखा है तो H3 क्लोज होगा। जैसे अभी देखिए फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैंने लार्ज किया है, S3 है तो यहाँ पे S3 क्लोज होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? एरर देगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पे एरर शो करेगा आपका, ठीक है। दिस इज H7 एंड नाउ दिस इज H4, दिस इज H5, दिस इज H6, दिस वन इज H7। ओके, तो यहाँ पर आप हेडिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 7। ओके, अब इसके नीचे कर देते हैं एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। पैराग्राफ क्या होगा हमारा? पैराग्राफ में लिख देते हैं, पैराग्राफ में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ में लिख देते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग, ठीक है, ठीक है। पैराग्राफ को हमने क्या किया? क्लोज कर दिया। अब देखिए ब्रेक, जो हमने ब्रेक यूज किया था, ब्रेक का कहाँ, सॉरी, ब्रेक का कहाँ पर यूज होता है? एक्चुअली जब ये लाइंस लिखते हैं हम लोग, तो लाइन में अगर BR लिख देते हैं, BR यूज्ड फॉर ब्रेक, तो ये क्या करता है, यहाँ पर हमें ओपनिंग क्लोजिंग की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए सोचना ही नहीं होता। ब्रेक हमने लगा दिया, मतलब वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होगा, हमारा जो कोडिंग होगा ना वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम ब्रेक यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर? क्लियर है ना? यस सर। तो अब कोई मुझे बताएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा? आप लोग बताएंगे इसका आउटपुट क्या लिखा होगा? अच्छा, एक चीज और, ये आपका टेक्स्ट एडिटर रहा, टेक्स्ट एडिटर रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर को सबसे पहला काम क्या है, हमें फाइल को सेव करना होता है, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर में सबसे पहला काम क्या होता है? फाइल को सेव करना, ठीक है। तो फाइल को सेव करने के लिए क्या करते हैं? फाइल पे गए, देन सेव। सेव पे जाके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है फाइल को सेव करने का, वो ये होता है कि जब आप फाइल को सेव करने जाएंगे तो वहां पर आपको क्या होगा, डेस्कटॉप में मान लो हमने ये फाइल लिया, हेडिंग टेस्ट लिख देते हैं। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे, इसके नीचे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल टेक्स्ट फाइल लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना। लेकिन यस सर। लेकिन हमें Yes. फाइल का एक्सटेंशन क्या देना है? फाइल का एक्सटेंशन क्या देना है? फाइल का एक्सटेंशन क्या देना है? यहाँ पे एक्सटेंशन जैसे यहाँ पे txt आएगा ना, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है?
यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने इस फाइल को सिर्फ इतना सा करके सेव कर दिया तो ये फाइल आपका कभी भी रन नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए .html, ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये .html इसका एक्सटेंशन कहलाता है। जब तक आप इसको HTML फाइल की तरह सेव नहीं करेंगे तब तक ये आपका रन नहीं करेगा, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। हाँ, हमने क्या किया, हेडिंग टेस्ट, इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है, कर लें इसको सेव। चलिए Yes, sir. हमने सेव कर लिया, ये फाइल सेव हो गई। अब हमारा रन करना चाहिए। अब हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, ये तो हमारा टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। सो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, तो टेक्स्ट एडिटर की बात खत्म हो गई। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे जाके क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे हमारा ये हेडिंग टेक्स्ट है ना, इसका देखो, इसका लुक देख रहे हो आप, ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अब ये आपको अगर इसको चाहोगे ना रन कराना, रन नहीं करेगा। जैसे देखते हैं ट्राई करके, रन कराने के लिए क्या करते हैं, इसको करेंगे राइट क्लिक करके फिर करेंगे इसको ओपन विद क्या करेंगे, ओपन विद। देखिए आपका क्या क्या आ रहा है, ड्रीम वीवर, नोटपैड, कैल्क, वर्डपैड, ये सारी चीजें आ रही है ना। अब देखिए इस एक्सटेंशन का क्या क्या काम होता है, जो हमने बोला कि इसको डॉट ऐसे सेव नहीं करेंगे। अब इसको देखिए ओपन विद कीजिए, फिर से आप ओपन विद, टेक्स्ट एडिटर है ना हमारा, नोटपैड, ओके। सो इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, ये हमारा ठीक है। अब फाइल को फिर से हम सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन क्या लिखा हुआ है, txt लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक्सटेंशन txt लिखा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको? आप सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट डॉट txt लिखा हुआ है। यस सर। अब फिर से फाइल को हम क्या करते हैं, चूंकि फाइल हमारा ऑलरेडी सेव है तो हम इसको क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज करते हैं। अब सेव एज करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेडिंग टेक्स्ट, यहाँ पे अब क्या लगाते हैं, .htm भी लगाओगे तो काम चल जाएगा और l भी लगाओगे तो काम, html हो या htm हो, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखना सेम फाइल है हमारी, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज सेम फाइल, हमने इसको सेव कर दिया। देखो अभी तुरंत में आपको डिफरेंस दिख गया, यहाँ पे यहाँ डिफरेंस दिख रहा है कि कलरिंग इसके कलर चेंज हो गए। यहाँ पे साइड में आपका दिखा रहा है, बॉडी यहाँ पे दिखा रहा है कि बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी एंड हो गया यहाँ पे, फिर ये हेड स्टार्ट हुआ, हेड यहाँ पे एंड हो गया। जहाँ पे जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हो रही है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है ना। यस सर। अब देखिए यहाँ चले आइए आप डेस्कटॉप पे, यहाँ पे देख रहे हैं खुद ब खुद फाइल का आइकन चेंज हो गया, जबकि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका एक्सटेंशन चेंज किया है, दैट इज .html, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये आपका चेंज हो गया, दिखाई दे रहा है ना। अब हम उसको, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस सर। अब हम इसको देखते हैं, जैसे ही ओपन विद करते हैं तो ओपन विद क्या क्या आ रहा है, देखिए आप, अभी क्या आ रहा था, हमारा टेक्स्ट एडिटर आ रहा था। अब यहाँ क्या आ रहा है, ओपन विद गूगल क्रोम, क्रोमियम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे वेब ब्राउजर आ रहे हैं आपके। तो हम इसको गूगल क्रोम के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, गूगल क्रोम के साथ ओपन करते हैं। आपका आउटपुट आ गया, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes. अब सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज हेडिंग 1 के बाद हमने क्या यूज किया था, याद है आपको? हेडिंग 1 के बाद एक वर्ड यूज किया था हमने, वहां पे एक की यूज की थी, वहां पे एक कोड यूज किया था। कौन सा कोड था हमारा, क्या लिखा था हमने, कौन सा टैग दिया था वहां? ओपनिंग BR और क्लोजिंग BR टैग। BR के लिए तो ओपनिंग क्लोजिंग होगा नहीं, BR ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच जो लाइन गैप है उसका रीजन ये है कि हमने ये BR टैग यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। अगर इस BR टैग को यहाँ से हटा देते हैं तो बिल्कुल उसके बाद क्या करते हैं, फाइल देन सेव। अब देखिए इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए, देखिए डिफरेंस दिख गया आपको। अब देखिए दूसरी चीज, आप एक और इम्पोर्टेंट चीज है, दिस इज हेडिंग 7 और दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेडिंग्स, दोनों का फॉन्ट साइज एक है, दोनों का फॉन्ट साइज एक है ना।
यस सर। बाकी आप H1 से H6 तक आइए, देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, H1 का साइज बड़ा है, H2 का साइज उससे छोटा, H3 का उससे छोटा, H4 का उससे छोटा, इस तरह आपका H6 तक छोटा छोटा आ रहा है। तो H7 का और छोटा आना चाहिए था ना, H7 का और छोटा आना चाहिए था ना, यस और नो? H7 का और छोटा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी हेडिंग टैग जो है ना वो 1 से 6 तक ही होती है, 7 कोई हेडिंग टैग नहीं है, इसलिए इसको नॉर्मल फॉन्ट के रूप में ट्रीट किया गया। ठीक है, ठीक है ना? ओके सर। यस सर। तो हमने यहाँ पे जो H7 देखो, यहाँ पे अब एक चीज देखो, यहाँ पर भी आप अपना एरर देख सकते हो। यहाँ पर H1 से H6 तक तो ठीक है, ये ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ना, लेकिन H7 टैग जो है वो ब्लैक कलर से हो गया। इट मीन टू से दिस इज इनवैलिड टैग, इस टैग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी सर। सो दिस इज योर फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पर अगर कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए BR टैग हमने यूज किया था, BR टैग हमने, अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, इस यूजर फ्रेंडली इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने लिखा तो यहाँ पे ये पॉपअप आ गया, यहाँ पर से आप कोई भी काम कर सकते हो, लाइक एज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, पोजीशन, रिपीट, जो भी चीज़ आप यहाँ से चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपका ये सारी सभी पार्ट आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, BR यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर हम फिर से H1 कर देते हैं या S3 कर देते हैं, मान लो इसको S3, देखिए यहाँ तुरंत ब्लू हो गया ना, जैसे ही हमने S3 लिखा ब्लू हो गया। ठीक है, अब ब्लू हो गया ना। अब देखिए इसी तरह हम BR यूज कर लेते हैं सभी पर। ठीक है, हमने क्या किया, BR यूज कर लिया, ये BR टैग है आपका, BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब देखिए दूसरा चीज आप देखिए, एक चीज और दिखाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, H1 से लेकर के S3 तक हमने क्या किया, इसको यहाँ पर सेम लाइन में लिख दिया। अब देखिए क्या होता है, फाइल को सेव कीजिए, फाइल सेव, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन इट अगेन। क्या हुआ, दिखाई दिया आप लोगों को? अगर सेम लाइन में हमने लिख लिया फिर भी कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए दिस इज हेडिंग 7, एक्चुअली ये हेडिंग कौन सा है, हमने कौन सा यूज किया था, हेडिंग 3 यूज किया था ना। यस सर। तो देखिए ये बिल्कुल 3 के अकॉर्डिंग बिल्कुल 3 के जैसा है, एज इट इज 3। ठीक है, तो नाउ इस हेडिंग को एक चीज और, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इस टैग को BR टैग को यहाँ पर यूज कर लूँ, यहाँ पे हमने BR टैग यूज कर लिया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर हमने BR टैग यूज कर लिया। अब कोई आउटपुट बताएगा मुझे, इसका आउटपुट क्या होगा? आप लोगों में से कोई बताएंगे मुझे? जैसे अब इन दोनों टैग के बीच भी BR यूज कर लिया ना, तो क्या होगा देखते हैं, कुछ दिखाई दिया? इन लाइंस के बीच ब्रेक बन गया है ना। यस सर। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर H7 को सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, S3 थोड़ा मीनिंगलेस है, वहाँ पे उसका कोई यूज़ है नहीं, S3 को डिलीट कर दिया, एंड यहाँ पे H6 को नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वेब पेज हो गया। चूँकि जब मैं कंप्यूटर पे वर्क कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे वर्क करते समय हमारे पास ये नोटपैड एडिटर अलग से है और हमारे पास वेब ब्राउज़र अलग से है, डिफरेंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि आप लोग मोबाइल पे वर्क करोगे, मोबाइल पे कैसे काम करोगे, तो हमने इसलिए यहाँ पर W3 स्कूल का यूज़ किया है, जो कि आपको टेक्स्ट एडिटर के लिए यहाँ पे आपको क्या करता है, एक टेक्स्ट एडिटर, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर देता है, और इस टेक्स्ट एडिटर के थ्रू क्या करते हो, आप अपने कोड को एट ए टाइम रन करा के देख सकते हो। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे भी यही स्टेप बताया गया आपको कि यहाँ पर index.html लिखिए या HTML लिखिए। नाउ सेम स्टेप आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये कोड है आपका। अब देखिए सेम चीज आप यहाँ पे करने जा रहे हैं। दिस इज योर एडिटर, दिस एडिटर नेम क्या है इस एडिटर का, ट्राई इट योरसेल्फ। उस हमारा जो एडिटर है उसका क्या नाम है, नोटपैड
और यहाँ पर जो एडिटर है उसका क्या नाम है, ट्राई इट योरसेल्फ। इस एडिटर का नाम ही है ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। अब दूसरा चीज देखिए, यहाँ पर आपने कोडिंग लिख ली, इसको रन करा दिया, ऐसे आ गया। अब हमारे पास जो कोड है, मान लो हमने ये कोडिंग लिखी है, एक चीज और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट टाइप DOC, दैट इज योर DOC, ठीक है, ये होगा आपका HTML। ठीक है, ठीक है। अब बट आप इसको यहाँ पर यूज़ करें ना करें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्राउज़र हमारा एडवांस हो चुका है। ठीक है, तो सो यहाँ पर आप देखिए, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये कोड आप लिखें ना लिखें यहाँ पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए सेम कोड को क्या करते हैं, सेम को यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सेलेक्ट ऑल एंड कॉपी कर लिया। अब क्या करते हैं, जो हमारा एडिटर है यहाँ पर ना, यहाँ पर जाके क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, पेस्ट कर दिया, हमारा कोड आ गया यहाँ पर, हमारी कोड आ गई ना यहाँ पर, यही तो लिखा था हम लोगों ने अभी, है ना। यस सर। ओके, अब इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कोड रन कर गया, यहाँ पर रन कर रहा है, रन कर रहा है ना। यस सर। यस सर। देखिए जैसे यहाँ पे एक मान लो एग्जांपल आपने टर्मिनेटर दे दिया, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में करते थे। अगर टर्मिनेटर दे दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनेटर यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो गया, टर्मिनेटर का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए टर्मिनेटर यहाँ पर यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, अभी तक में, अब देखिए यहाँ पे हमने एक ब्रेक बीच में हटा लिया, तो इन दोनों लाइन के बीच की गैप खत्म हो गई ना। ठीक है, अब यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? नो सर। अब तो रन करा सकते हैं ना खुद से। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग है, बुक में हमारे क्या है, जो आप लोगों को हमने पिछली क्लास में बताया था। ओके, ये HTML बेसिक्स तो हो गए थे आपके, जो आज हम लोगों ने सीखा है HTML फाइल के बारे में। ठीक है, ये एडिटर के बारे में ये तक हम लोगों ने सीख लिया है नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या क्या हमें अब देखना है। बेसिक टैग तो ये हमने टैग यूज कर लिया ना, HTML का टैग यूज कर लिया, बॉडी टैग यूज कर लिया, H1 to H6 यूज कर लिया, P भी यूज कर लिया, BR टैग भी यूज कर लिया, HR नहीं किया अभी, नहीं HR नहीं किया, HR कर लेंगे। और ये कमेंट क्या होता है, कमेंट के बारे में कर लेंगे। हाँ, अब हेडिंग टैग को यहाँ यूज करने के लिए बताया गया है, ये टैग तो हमने यूज कर लिया ना भाई, कर लिया ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक अलाइनमेंट का होता है, अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट, जिसके बारे में हम अभी देख लें एक मिनट। ठीक है, चलिए इसको ना एक सेकंड देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, अलाइनमेंट का है। फिर पैराग्राफ का तो हम लोग देख चुके हैं ना, पैराग्राफ भी हम लोगों ने यूज कर लिया नहीं, पैराग्राफ हम लोगों ने यूज कर लिया यहाँ पर। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको कोड को यहाँ पे रन करके देखेंगे। जैसे P यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक कोड यहाँ पे डाल दिया, अलाइनमेंट लेफ्ट, या हम लोग इसको कर देते हैं लेफ्ट तो है, इसको राइट कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे आया अलाइनमेंट पे, यहाँ पे राइट साइड यहाँ आ गया। किसकी ज्वाइनिंग आ रही है अभी? ओके, ठीक है, तो ये अलाइनमेंट यहाँ पे आ गया। अब इस कोड को रन कर, अच्छा कोड यहाँ पर हम यहाँ एडिट करें या फिर इस पे एडिट कर लें, दोनों बात तो एक ही है ना, नहीं?
अब तो बात समझ में आ गई ना आपको, तो ये दोनों बात एक ही है, चाहे यहाँ पर करें या नोटपैड पे करें, नहीं? ठीक है। यस सर। ठीक है। दिस इज M6, यहाँ पे H1, यहाँ पर करते हैं अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है, सेंटर कर दिया। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखा आपने, इसका अलाइनमेंट अगर चेंज कर दिया, दिस इज सेंटर, यहाँ सेंटर पे आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, और भी इनको करके देख लेते हैं, लाइक एज इसका अलाइनमेंट हम कहाँ कर देते हैं, इसका अलाइनमेंट हम राइट कर देते हैं, नहीं, हमें तो सीखना ही है ना, ओके। ठीक है, इसका राइट कर दिया हमने, फिर इसका लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस आपको दिख गया, डिफरेंस दिख गया ना? यस सर। सेम कोड अगर हम चाहें तो यहाँ से किसी भी जगह से, किसी भी एडिटर कोई भी चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, सेम कोड यहाँ पे आया, यहाँ पे सेम कोड को पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे फाइल सेव कर लिया हमने, और फाइल सेव करके यहाँ रन कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सेम हो रहा है ना, ये सेंटर पे है, ये राइट पे है, ये लेफ्ट पे है ना। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पे देख रहे हो अलाइनमेंट आपका सेट हो रहा है, अलाइनमेंट कैसे सेंटर पे करते हैं, लेफ्ट राइट कैसे करते हैं, ठीक है, हो गया ये आपका। अब लाइन ब्रेक के बारे में, तो लाइन ब्रेक तो हम लोगों ने यूज कर लिया है, लाइन ब्रेक यूज कर लिया ना, BR यूज किया ना हम लोगों ने। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी तरह हॉरिजॉन्टल रूल वगैरह देखेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने इतना सीखा है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना सा, थैंक यू सो मच, ओके।